Hello student, myself Neha Yadav and today I will be discussing the module 1 of research methodology. The course code of research methodology is BBA 3304. I have mentioned in the slide, and in first module we will be discussing about the introduction part, ki what the research is all about, what is the meaning of research, what do you mean by the term research and its various objectives, why we conduct research in various fields, and what are the types of research. So these are the topics that we will discuss here. So moving on to next slide, I mentioned in the slide that the topics which I will be covering here is meaning of research, objectives of research, and types of research. So first of all, being a researcher, we should know what is research. Research means what? In a simple terms, you can say that research means search of knowledge. So whatever knowledge or information you want to gather from the market, that sort of investigation or inquiry is known as research. So research in a simple terms means search for knowledge. So moving with the first topic, we will discuss here what is meaning of research. So research means search for knowledge. Research means search for knowledge. So research is a scientific and systematic search. So it is a process which involves scientific methods and technologies. So it is a scientific and systematic search for pertinent information on a specific topic. So research topic or research problem can be any topic. So whatever information a researcher want to gather by conducting inquiry or investigation, that is called research. So you can say research is an art of scientific investigation. Why? Because it includes scientific tools and technology. So the research process, it consists of various steps, and in this definition I have discussed about what the research is all about in detail. So the term research refers to the systematic method consisting of, so it is a systematic method which consisting of initiating the problem. Initiating means identifying the problem. Now किस पे हमें research करनी है, क्या हमारा research problem है, क्या topic है. Problem can be related to any individual, it can be related to any society or any group or any situation. So that depends upon the researcher कि उसको किस problem को पे research करनी है. So that is research. Then based on then after that we have to, based on that research problem, we formulate certain assumptions. ठीक है, assumptions के basis पे हम क्या करते हैं, data assumptions हम develop करते हैं, और उसके basis पे हम अगर हमें problem solve करनी है तो उसके लिए हमें data collection करना होता है. So next one is collecting the facts और data. ठीक है, अभी डेटा कलेक्शन कैसे करना होता है ये हम अभी फर्दर बाद में नेक्स्ट मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे, क्या क्या ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम डेटा कलेक्शन करते हैं, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम उन डेटा को या फैक्ट्स को स्टडी करते हैं या एनालाइज करते हैं. So this is all about research. So I have mentioned here in the definition, that is the term research refers to the systematic method which consists of initiating the problem, means identifying the problem, then developing the assumptions, and then collecting the facts. And the last one is analyzing the facts. मीन्स जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं. फॉर व्हाट पर्पस? फॉर रीचिंग द कंक्लूजन्स, और यू कैन से सॉल्यूशंस फॉर दैट कंसर्न प्रॉब्लम. And if you want to develop certain concepts generalization, or if you want to develop certain theory, then you can also conduct this process of research. So in a simple language, you can say that research means search for knowledge, and that search for knowledge can be related to any specific topic. So it is a art of scientific investigation. So this was all about research. Research means searching for knowledge. The next topic that we will discuss here is objectives of research. So why we conduct a research, what are the objective, what is the purpose. So first of all, if we have to solve any problem, that problem can be related to any issue. So for resolving that problem and for deriving a solution or conclusion of that whole problem, we conduct research. So or you can say that if you want to find out the truth, that I have mentioned here, the purpose of research is to discover answers to the questions through the application of scientific procedures, and the main aim of research is to find out the truth. Truth find करना, जो fact है उसको find करना, and
बेसिकली जो रिसर्च होता है, रिसर्च स्टडी हम करते हैं, तो अगर हमें जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो बेसिकली वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड होते हैं. सो दोज रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग कैटेगराइज्ड हियर इनटू फोर ब्रॉड कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी बेसिकली किससे रिलेटेड होती है कि सपोज अगर हम कोई भी रिसर्च करते हैं जिसपे हमें कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स को या न्यू आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ पे तो वो हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज होता है. ठीक है, तो वो जो भी आइडियाज हम एक्सप्लोर करते हैं दैट कैन बी रिलेटेड टू एनी सिचुएशन, एनी फिनोमिना और एनी एक्टिविटी. So first point I have mentioned here, to gain familiarity with the phenomena or to achieve new insights into it. So these type of objectives are known as exploratory or formulative research studies, means where we try to achieve or where we try to gather or find out new ideas or new information. That is exploratory. The next one is, second one is descriptive research studies. In descriptive research studies, what is the main objective here? To find out the characteristic of any particular individual. Okay, so if we are trying to find out the characteristic of an individual, situation or group, so those type of research is called descriptive research studies. Third one is diagnostic research studies. What is diagnostic means? To diagnose means to find out the what is the frequency of any situation. So if something is occurring, so what is the frequency, how many times it is occurring, or that situation is related to which factor, which variable. So if we are trying to determine the frequency with which something occurs or with which it is associated means the causes of that situation. So this type of research is called as diagnostic research studies, where we try to determine the frequency of any occurring or any situation or any activity, and with which factor it is associated. So those type of research studies are called diagnostic research studies. And fourth one is hypothesis testing research studies. Hypothesis testing means, I have already discussed कि when we identify the problem, then the researcher also develops certain assumptions. So अब वो assumptions को हमें अपने research study में accept करना है या reject करना है, वो हमारे लिए सॉल्यूशन के प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है, उस एजम्पशन को हमें एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है. तो इसको बेसिकली हम कुछ टेस्टिंग के बेसिस पे करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज. सो दिस इज टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स. तो जिस भी रिसर्च पे हम जो वेरिएबल्स को इंक्लूड कर रहे हैं उसको हम टेस्ट करते हैं, इसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च studies बोलते हैं. So this was all about objectives of research. So where we have categorized the research objectives into four groupings. First one was exploratory, second one was descriptive, next one was diagnostic, and fourth one was hypothesis testing. So the overall objective of conducting research is what? कि suppose if any researcher has any problem, ठीक है, suppose for example if we are conducting research in the field of marketing to find out the consumer behavior, कि how many customers are satisfied with the products of Amul dairy products. So this is the problem, कि we have to find out कि how many customers are satisfied with the products of Amul. So this is the problem. So based on this problem, we will try to conduct research studies. So basically, research studies objective is to find out the solution of any problem. So in this way, research objective can be of, it can be based on any topic, it can be related to any topic. ठीक है, it can be related to the problem of individual also, it can be related to problem of society or any business or any organization. So it can be related to any topic. So this was all about the objectives of the research. The next one is types of research. Now research is of various types, as I have mentioned here. First one is descriptive versus analytical. Next one is applied versus fundamental research. Third one is quantitative versus qualitative research. Fourth one is conceptual versus empirical research, and fifth one is other types of research. So we will discuss here one by one each and every type. So first one is descriptive versus analytical. So in descriptive type of research, we try to conduct research by doing surveys and fact finding inquiries. So we try to collect information or collect the data by conducting various type of inquiries, or you can say survey. That survey can be related to any market research or any business research. ठीक है, तो सपोज बेसिकली जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का बेसिक पर्पस क्या होता है कि वी ट्राई टू डिस्क्राइब कि व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द स्टेट दैट इज बीइंग अकरिंग.
ठीक है. So this is the main purpose that I have mentioned here. कि we try to descriptive research includes surveys and fact finding inquiries of different types, and the main purpose is description of the state of affairs as it exists at present. तो बेसिकली जो भी सोशल साइंस है या बिजनेस रिसर्च है वहाँ पर हमें एक टर्म यूज करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. और इस मेथड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन ओनली रिपोर्ट कि व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग. तो बेसिकली यहाँ पे जो रिसर्चर होते हैं उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, बट दे कैन एक्सप्लोर और डिस्कवर द कॉजेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सिचुएशन और एक्टिविटी और एनी प्रॉब्लम. तो बेसिकली ये आपके यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव मेथड्स होते हैं इसमें ऑल टाइप ऑफ सर्वे मेथड्स आते हैं. द नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल रिसर्च. एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है कि यहाँ पे जो रिसर्चर होता है ही हैज़ टू यूज द फैक्ट्स. जो भी मार्केट में इंफॉर्मेशन फैक्ट्स अवेलेबल हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उनको वो यूज करके further analysis या study करता है for that problem solving. So this type of research is called analytical research, where the researcher uses the already available information and data and use those data to make the further evaluation. The next one is applied versus fundamental research. Now here with the name you can say that applied means action research and fundamental means basic or pure research. ठीक है. तो applied research क्या होता है, जो basically हम apply करते हैं. अप्लाई मतलब एक्शन, मतलब अगर जो भी सपोज कोई सोसाइटी है इंडस्ट्री है अगर वो कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रही है तो उसका इमीडिएट सॉल्यूशन करना ही अप्लाइड रिसर्च का बेसिक एम या ऑब्जेक्टिव होता है. और फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, जो बेसिकली जनरलाइजेशन या थ्योरी से रिलेटेड होता है. मतलब अगर हमें कोई भी थ्योरी फॉर्मुलेट करनी है या कुछ कॉन्सेप्ट्स डिराइव करने हैं तो उसको फाइंड आउट करना ही हमारा फंडामेंटल रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है. तो फंडामेंटल रिसर्च इज मेनली कंसर्न्ड विद जनरलाइजेशन एंड विद फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी. ठीक है. तो आप इसको फंडामेंटल रिसर्च को बेसिक और प्योर रिसर्च भी कहते हैं, जहाँ पे हम नॉलेज को गैदर करते हैं नॉलेज पर्पस के. ठीक है. तो रिसर्च विच इज कंसर्न्ड विद सम नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल सिचुएशन और एक्टिविटी और रिलेटेड टू प्योर मैथमेटिक्स. अगर कोई भी रिसर्च हम करते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड या कोई भी नेचुरल फिनोमिना है तो वो सारे एग्जांपल्स हमारे फंडामेंटल रिसर्च के होंगे. और जो भी रिसर्च स्टडीज हम कंडक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड, ह्यूमन बिहेवियर मतलब कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड, तो वो हमारा फंडामेंटल रिसर्च का एग्जांपल्स होगा. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट अप्लाइड एंड fundamental research. The next one is quantitative versus qualitative research. So with the name you can understand that what is the difference between quantitative and qualitative. Quantitative means which you can measure in terms of quantity or amount, that you can express in terms of quantity. So that I mentioned here, if any situation is related, if any phenomena that can be expressed in terms of quantity, so if we are conducting research basically on those matters, those activities, those situations, that is called quantitative research. And qualitative means that is concerned with quality or qualitative phenomena related to any quality or kind. ठीक है. So suppose for example we are being a researcher, if we are interested in investigating the reasons for human behavior, why people think in such behavior in such manner, so that type of human behavior research is known as motivational research, जो हमारा qualitative research का example होता है. क्योंकि यहाँ पे हम we try being a researcher, we try to investigate कि why the human are behaving like that or any other type. ठीक है. So this is all about qualitative research. Then next one is conceptual and empirical research. Basically conceptual research जो होती है वो हमारी किसी भी abstract idea या theory से related होती है. ठीक है. तो बेसिकली जितने भी आपके फिलोसोफर्स होते हैं या थिंकर्स होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का यूज़ करते हैं. तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में बेसिकली जो फिलोसोफर्स होते हैं दे ट्राई टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज बाय कंडक्टिंग रिसर्च. तो रिसर्च करके वो क्या करते हैं कि कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स को डिराइव करते हैं. जितने भी फिलोसोफर्स होते हैं या कोई भी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं अगर उसमें कुछ भी री इंटरप्रिटेशन करना है तो उस पर वो फर्दर रिसर्च कंडक्ट करते हैं. तो ये हमारा कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होता है. और एम्पेरिकल रिसर्च क्या होता है, जो बेसिकली एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है. ये इस पे किसी भी तरीके का सिस्टम या थ्योरी से इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. ठीक है. तो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो रिसर्च की जाती है वो एम्पेरिकल रिसर्च होती है. तो एक तरीके का ये डेटा बेस्ड रिसर्च होता है जिसमें हम कंक्लूजन्स जो ड्रॉ करते हैं या सॉल्यूशन जो निकालते हैं वो उसको हम फर्दर वेरीफाई भी कर सकते हैं
ऑब्जर्वेशन करके या एक्सपेरिमेंट्स करके। तो ये हमारा आपका हुआ एम्पेरिकल रिसर्च। देन फिफ्थ वन इज अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो अदर टाइप्स में बेसिकली आपके वन टाइम रिसर्च आता है, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च आता है, ठीक है, जो टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे होता है कि सपोज अगर हम रिसर्च करते हैं, जो वन टाइम रिसर्च होता है वहाँ पे वो एक सिंगल टाइम पीरियड के लिए ही कन्फाइंड होता है। और जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च होता है उसमें हम जो रिसर्च प्रोसेस करते हैं वो सेवरल टाइम पीरियड्स पे करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से रिसर्च हमारा इन्वायरमेंट के बेसिस पे भी होता है कि डिपेंडिंग इन द इन्वायरमेंट जहाँ पे हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वो फील्ड सेटिंग भी हो सकता है, लैब्स में भी करते हैं तो लेबोरेटरी रिसर्च होता है, इस तरीके से डायग्नोस्टिक रिसर्च भी होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं। तो दीज वर द टॉपिक्स दैट आई हैव डिस्कस्ड हियर। देन I would like to conclude this whole presentation again by highlighting the points that I have discussed here. That was meaning of research. So again, I would like to conclude that research means search for knowledge. Means so search for knowledge means that research objective can be related to any topic. So it is a kind of scientific investigation because here we are using the scientific tools and technologies. Okay. And in research process, first of all, we try to identify the problem. Then we develop the hypothesis or assumptions, and then we try to collect the facts. Now, collecting facts, basically for this purpose, a researcher can use the primary methods. Various techniques are there, like with the help of surveys you can collect the facts, with the help of some feedback or questions you can collect the facts, or with the help of field survey, or you can conduct various type of market research also. So with the help of interview method you can collect the facts. So it depends upon the researcher and which method he would like to use for collecting the facts. Then next one is now जो भी facts collect किए हैं उसको हम further analysis करते हैं और उसके basis पे हम conclusions draw करते हैं. तो ये this was all about research process. तो research process की help से हम different theories formulate कर सकते हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि अगर हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें एक प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए तो वो हम रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है. तो रिसर्च का मेन एम क्या होता है कि ट्रुथ को फाइंड आउट करना, कि व्हाट इज द ट्रुथ, व्हाट इज द एग्जैक्ट रियलिटी, फैक्ट, ठीक है, जो अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया, तो इसको हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं. तो बेसिकली रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. तो ऑब्जेक्टिव्स जो बेसिकली होते हैं वो 4 ग्रुपिक्स में डिवाइड किए जाते हैं जो मैंने बताया आपको: एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है. तो एक्सप्लोरेटरी में मैंने बताया कि जहाँ पे हम न्यू आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं. डिस्क्रिप्टिव मतलब अगर हम किसी भी इंडिविजुअल, सोसाइटी या ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे हैं रिसर्च में, तो वो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च हो गया. डायग्नोस्टिक मतलब जहाँ पे हम ट्राई टू फाइंड आउट कि if anything is occurring then what is the frequency of that situation, और वो किससे एसोसिएटेड है. और अगर एजम्पशंस हैं उसकी हम टेस्टिंग करते हैं, मतलब जो भी हमारा हाइपोथेसिस एजम्पशंस है अगर उसकी टेस्टिंग करते हैं हम, तो हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करके एजम्पशंस को टेस्ट करते हैं कि वो हमें रिसर्च प्रोसेस में इन्वॉल्व करने हैं, एक्सेप्ट करने कि नहीं करने, ठीक है. तो फिर नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ रिसर्च. टाइप्स ऑफ रिसर्च में बेसिकली क्या आएंगे, डिफरेंट टाइप्स आएंगे. डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल. डिस्क्रिप्टिव में मैंने बताया कि बेसिकली हम सर्वेज या इंक्वायरीज के थ्रू डेटा कलेक्शन करते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वेज मेथड हम यूज कर सकते हैं. इसमें एक एक्स पोस्ट फैक्टो टर्म भी आता है. एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब जहाँ पे हम जो भी वेरिएबल्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी कंट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं, अगर वो क्यों कर हो रहे हैं उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. वी कैन ट्राई टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ दैट प्रॉब्लम. So this is all about ex post facto research that we are including in descriptive. Analytical क्या होता है? Analytical means जहाँ पे रिसर्चर जो है जो भी फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं उनको यूज करके फर्दर स्टडी या एनालिसिस करते हैं. नेक्स्ट है अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल. अप्लाइड मींस एक्शन रिसर्च और फंडामेंटल आपका बेसिक और प्योर रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च मींस जहाँ पे हम किसी भी जो भी प्रॉब्लम है सोसाइटी जो फेस कर रही है, इंडस्ट्री फेस कर रही है, उसका हम इमीडिएट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है. और फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, जहाँ पे हम थ्योरीज को फॉर्मुलेट करते हैं. तो बेसिकली जितना भी ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड रिसर्च होती है वो हमारा फंडामेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल होता है, ठीक है. देन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है कि जहाँ पे रिसर्च जो हम करते हैं जिनको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, वो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गया. और जहाँ पे क्वालिटी एस्पेक्ट आता है वो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च आ गया, जैसे कि मोटिवेशनल रिसर्च. फिर नेक्स्ट है
कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पेरिकल रिसर्च। तो कॉन्सेप्चुअल और एम्पेरिकल रिसर्च क्या होता है कि जहाँ पे हमारा कॉन्सेप्चुअल मीन्स जो बेसिकली आपके फिलोसफर्स या थिंकर्स यूज करते हैं कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है, या एग्जिस्टिंग आइडियाज में कुछ री इंटरप्रिटेशन करने के लिए। एंड एम्पेरिकल रिसर्च बेसिकली जो हमारा एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, तो ये कम्प्लीटली आपका डेटा बेस्ड रिसर्च होता है। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट हो गया अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च में मैंने आपको बताया है कि सॉरी एम्पेरिकल रिसर्च, अभी एक बार फिर से हम बता देते हैं। एम्पेरिकल रिसर्च क्या होता है, जो एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो एक तरीके का ये डेटा बेस्ड रिसर्च होता है जिनको हम एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वेरीफाई कर सकते हैं। अदर टाइप्स में आपका आता है वन टाइम लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। ठीक है, तो वन टाइम लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च क्या होता है, वन टाइम मीन्स कि जिसको हम सिंगल टाइम पीरियड पे अगर रिसर्च करते हैं तो वन टाइम में आ गया। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। और फिर इन्वायरमेंट के बेसिस पे लैबोरेटरी रिसर्च होता है, और आपका फील्ड सेटिंग भी हो सकता है, फील्ड रिसर्च भी हो सकता है, और डायग्नोस्टिक रिसर्च भी हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक्स दैट आई हैव डिस्कस्ड। रिसर्च मेथड्स versus research methodology means what is the difference between research methods and methodology, and the significance of research and the importance of knowing how research is done. So these are the topics that we will discuss here today. So in first topic we will discuss what is the difference between research methods and methodology, and second point, what is the importance of research and significance, and why importance of knowing why we should do research, how research is done, why it is very required. So first one is research methods versus methodology. But before starting this topics, first I would like to explain just a recap of the previous topics that we have discussed in the first module, that was meaning of research and the types of research and the objectives of research. So once again I can revise. So first one is research. Okay, research we have already discussed. What is research? Research means search for knowledge, means where the researcher tries to collect the facts by doing investigation. That investigation will include scientific tools and technologies. So that is research. And in objective part we have studied earlier that what were the objectives of research and why it is conducted. Okay, means to find out the solution of any problem, and there were various types also that we have discussed: conceptual, empirical, applied, fundamental, descriptive, exploratory research. So these were the topics that we have discussed earlier. But now we should know what is the difference between research methods and methodology. So what is research method? Research method means the techniques or methods that a researcher is using for the conduction of research. That is research, that is research methods. ठीक है, and research methods or techniques, you can say, refers to the methods a researcher use in performing research operations. ठीक है, so for performing the research operations, whatever techniques or whatever methods a researcher is using for the conduction of the research process, that will be research method. For example, if a researcher is using survey method, so that will be research method. And how he is conducting the interview or survey method, that is research methodology. So the exact difference between methods and methodology is what? Method means the techniques that you are using being a researcher for the conduction of research purpose, and methodology means the way you are the way or methods that you are using to systematically solve the problem. ठीक है, किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टमैटिकली प्रोसेस यूज कर रहे हैं, वे किस तरीके से आप कर रहे हैं, वो आपका रिसर्च मैथोलॉजी हो गया। सपोज कि फॉर एग्जांपल सर्वे मेथड है, तो सर्वे मेथड के लिए आप किस तरीके से सर्वे कर रहे हैं, ये प्रोसेस कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो वे जो होता है वो मैथोलॉजी हो गया, और जो मेथड आपने यूज किया वो मेथड्स हो गया। सो दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन मेथड्स एंड मैथोलॉजी. So in this slide I have discussed all about this key. What is methods? Method means the techniques that the researcher is using in performing the research operations, and all those methods which are used by researcher during the course of studying his problem are termed as research method. So I hope research method is clear ki what is research methods. Then now next question arises is of research methodology. ठीक है, research techniques refers to the behavior instruments, मतलब techniques by methods हुए,
ठीक है, टेक्निक्स और मेथड बोथ इज सेम थिंग, ठीक है। तो मतलब जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं रिसर्च ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल सच एज मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, अगर आप ऑब्जर्वेशंस के थ्रू रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या डेटा रिकॉर्ड करके कर रहे हैं, ठीक है, या अगर आप डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। मान लीजिए जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आप क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। तो ये सारे चीजें आपकी सारे मेथड्स और टेक्निक्स ही कहे जाते हैं, ठीक है। मतलब जो भी बिहेवियर या इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करते हैं किसी भी टेक्निक को कंस्ट्रक्ट करने में। और मेथोलॉजी क्या होता है, इट इज अ वे टू सिस्टमैटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस की रिसर्च मेथोलॉजी मीन्स कि आप सिस्टमैटिकली किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो आपका रिसर्च मेथोलॉजी हो गया। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप सर्वे मेथड यूज करते हैं तो सर्वे मेथड के लिए आप किस तरीके से सर्वे मेथड को सिस्टमैटिकली फॉलो कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं, वो आपका मेथोलॉजी हो गया, ठीक है। या इंटरव्यू मेथड कर रहे हैं तो इंटरव्यू मेथड के लिए आप क्या क्या फैसिलिटीज अरेंज कर रहे हैं, तो वो आपका रिसर्च मेथोलॉजी हो गया। तो मतलब आप किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली सॉल्व कर सकते हैं, वो मेथोलॉजी हो गया। और जो टेक्निक्स यूज करेंगे जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड है, सर्वे मेथड है, फील्ड सेटिंग मेथड है, इंटरव्यू मेथड है, तो वो हमारा क्या हो गया, रिसर्च टेक्निक्स हो गया, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। नाउ moving on to next topic that we'll discuss here is about the significance of research. So significance means what is the why research is required, why it is useful, what is the significance, what is the use of research, why it is important, ठीक है, you can say. So research, as we have already discussed, ki research is required in each and every field, whether it is a academic institution, whether he is a teacher, whether he is a research scholar, whether he is a student, or whether he is a doctor, lawyer, everyone, whether it is a medical field. And for the business purpose also business research is conducted. For the marketer also marketing research is being conducted, ठीक है। It is also useful for the government also, ठीक है, for the economist also to frame the policies, to develop certain new policies, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिसीज बनाने के लिए और डिफरेंट मार्केट रिसर्च करने के लिए और बिजनेस में किस तरीके से ऑपरेशंस करने हैं, प्लानिंग करनी है, तो ये सारी चीजें जो भी डिसीजंस लेने होते हैं बिजनेस के, तो इसके लिए हमें रिसर्च करनी होती है। तो रिसर्च हम डिफरेंट फील्ड में करते हैं, ठीक है। तो रिसर्च का सिग्निफिकेंस है, अपना ही सिग्निफिकेंस है, ठीक है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, चाहे वो बिजनेस का हो या किसी इंडिविजुअल का हो या किसी ग्रुप का हो या किसी सोसाइटी का, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दैट एकेडमिक पर्पस के लिए भी काफी यूजफुल होता है। जैसे स्टूडेंट्स को, जितने भी आपके पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर कोई भी थीसिस बनाना है या रिपोर्ट बनानी है या पीएचडी स्कॉलर है तो उसको अपनी थीसिस बनानी है, तो उसके लिए रिसर्च करनी होगी, ठीक है। तो बेसिकली रिसर्च जो की जाती है वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे की जाती है, किसी जो भी प्रॉब्लम है उस पे की जाती है। उसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। So these are the various significance of research that I have included here in the slide. So starting with the first topic, you can say first and foremost importance क्या होता है कि it inculcates scientific and inductive thinking, ठीक है। एक साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करता है माइंड में, या जो भी थिंकिंग एबिलिटीज हैं या उनको डेवलप करने के लिए हम रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी लॉजिकल हैबिट्स होती हैं सोचने की, ठीक है, उसको वो डेवलप करता है। this can be possible only with the help of research. Second one क्या है, the role of research in several field of applied economics, ठीक है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स में भी काफी इम्पोर्टेंस होता है रिसर्च का, ठीक है, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या इकोनॉमी के लिए हो, ठीक है। तो द इंक्रीजिंगली नेचर ऑफ बिजनेस एंड गवर्नमेंट हैज फोकस अटेंशन ऑन द यूज ऑफ रिसर्च इन what purpose, for solving the operational problems, ठीक है। तो किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से पॉलिसी बनानी है, किस तरीके से डिफरेंट ऑपरेशंस कैरी आउट करने हैं बिजनेस को या गवर्नमेंट को, उसको सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। फिर इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए भी काफी यूजफुल है, ठीक है, एज आई मेंशन्ड हियर इन थर्ड पॉइंट, दैट इज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट आल्सो एंड बिजनेस आल्सो, ठीक है। और जितने भी आपके गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं इकोनॉमिक सिस्टम में, वो बेसिकली रिसर्च के बेसिस पे ही डिसाइड की जाती है। द नेक्स्ट वन इज रिसर्च आल्सो हैज इट्स स्पेशल सिग्निफिकेंस इन वेरियस ऑपरेशनल एंड प्लानिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जितने भी बिजनेस या इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो भी ऑपरेशनल प्लानिंग है या किस तरीके से प्लानिंग करनी है, बिजनेस प्लानिंग करनी है, इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, ठीक है, फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस और फॉर कंडक्टिंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, ठीक है, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो या ऑपरेशनल से रिलेटेड हो, ठीक है।
तो इसके लिए भी काफ़ी यूजफुल होता है। ऑपरेशन रिसर्च और मार्केट रिसर्च और मोटिवेशनल रिसर्च, ठीक है, ये बहुत ही क्रूशियल कंसिडर किए जाते हैं और उनके रिजल्ट से हम जो है फर्दर बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। तो जिसके लिए हम मार्केट रिसर्च मतलब मार्केट में जाके हम जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। मोटिवेशनल रिसर्च मतलब ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड हम जो है प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं रिसर्च करके। और ऑपरेशंस मतलब किस तरीके से हमें ऑपरेशन करना है, प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट मतलब जितने भी आपके साइंटिस्ट हैं सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है, तो उनको उनके सोशल रिलेशनशिप जितने भी सोशल रिलेशनशिप है उनको स्टडी करने में जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च का यूज करते हैं, जिसके हेल्प से वो डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करते हैं। इसके अलावा मैंने नेक्स्ट पॉइंट लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च कैन बी आल्सो अंडरस्टूड इन कीपिंग व्यू द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो पहला क्या है, टू दोज स्टूडेंट्स हु आर हैव टू राइट पीएचडी थीसिस, ठीक है, और टू प्रोफेशनल्स इन रिसर्च मेथोलॉजी एंड टू फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स, ठीक है, जितने भी फिलोसफर्स या थिंकर्स हैं अगर उनको न्यू आइडियाज या इंसाइट्स डेवलप करना है, कोई न्यू थ्योरी बनानी है तो उसके लिए वो रिसर्च करते हैं। और जितने भी आपके लिटरेट्स मैन हैं वुमेन हैं, ठीक है, और उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी स्टाइल्स को डेवलप करने के लिए, वर्किंग को क्रिएटिव बनाने के लिए, और जितने भी एनालिस्ट हैं, ठीक है, तो वो थ्योरीज को डेवलप करने के लिए रिसर्च का यूज करते हैं। सो दीज आर द वेरियस सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर। देन नेक्स्ट वन इज the topics that I have discussed in the previous slide that is only being represented here, ठीक है, कि किन किन इंडिविजुअल सोसाइटी ग्रुप के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पॉइंट्स में यहाँ मेंशन किया है, ठीक है। तो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, फिलोसफर्स और थिंकर्स के लिए, जितने भी लिटरेट्स और मेंस के लिए हैं, वुमेन्स हैं, ठीक है, और एनालिस्ट के लिए। देन नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस हियर इज की इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग हाउ रिसर्च इज डन, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च कैसे किया जाता है। तो वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि मान लीजिए जैसे अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को कोई थीसिस प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग वगैरह करनी होती है, ठीक है। तो ट्रेनिंग में उसको जो भी इंटर्नशिप करनी होती है तो उसमें वो डेटा कलेक्शन करता है, फील्ड वर्क करता है, तो और कुछ क्वेश्चनार्स वगैरह फिलअप करवाता है जिसके बेसिस पे डेटा कलेक्शन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए पता होना चाहिए कि रिसर्च कैसे की जाती है, ठीक है। तो वही मैंने इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी गिव्स द स्टूडेंट द नेसेसरी ट्रेनिंग इन गैदरिंग मटेरियल। तो अगर आपको रिसर्च मेथोलॉजी का इंफॉर्मेशन पता है, नॉलेज है, तो वो स्टूडेंट को काफ़ी हेल्पफुल होता है कि वो किस तरीके से ट्रेनिंग पर्पस में मटेरियल गैदर करना है, हमें डेटा कलेक्शन करना है, ठीक है, या फील्ड वर्क कैसे करना है, और डेटा कलेक्शन कैसे करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और किस तरीके से स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करना है, किस तरीके से क्वेश्चन आंसर फिल करवाने हैं। तो ये डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इसमें काफ़ी यूजफुल होता है स्टूडेंट के लिए। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि पता होना चाहिए कि रिसर्च मैथोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड वन है फॉर वन हु इज़ प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर अ करियर। अगर आप रिसर्च में कैरी आउट करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़रूरी है कि आपको रिसर्च मैथोलॉजी का इम्पोर्टेंस पता हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपको टेक्निक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, मैथोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी, ठीक है। जो स्पेशली जो न्यू रिसर्च वर्कर है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको रिसर्च मैथोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि वो फर्दर बेटर रिसर्च कर पाए। तो बेसिकली फॉर द न्यू स्कॉलर एंड फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर सो दैट ही कैन बी गिवन नेसेसरी ट्रेनिंग कि हाउ द मटेरियल और इंफॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड, how the statistical tools should be used, how the experiment should be conducted, and how the data collection techniques can be used, ठीक है। Then next one is next point is knowledge of how to do research. Knowledge of how to do research will inculcate the ability to evaluate the research results. रिसर्च के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको उनके जजमेंट के लिए, उनके इवैल्यूएशन के लिए अगर आपको रिसर्च की नॉलेज है तो आप इट विल डेवलप योर एबिलिटीज, आपकी एबिलिटीज डेवलप होगी, यू विल बी लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट इन फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट रिजल्ट्स। सो इट इज़ यूजफुल फॉर वेरियस फील्ड्स, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, कम्युनिटी हो, या सोशल वर्क, ठीक है। तो हर किसी के लिए जो भी रिसर्च रिजल्ट्स है, अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए और उसमें बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो आपको रिसर्च मैथोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि व्हेन वन नोज हाउ रिसर्च इज डन देन वन मे हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ एक्वायरिंग अ टूल।
अगर आपको पता है कि कैसे रिसर्च किया जाता है तो जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए या स्टैटिस्टिकल टूल्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको सेटिस्फैक्शन होगा और आप डिसीजंस ले पाएंगे कि कौन सा टूल आपके लिए बेटर यूजफुल होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है कि इन दिस साइंटिफिक एज ऑल ऑफ अस आर इन मेनी वेज ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ रिसर्च एंड वी कैन यूज देम इंटेलिजेंटली प्रोवाइडेड। ठीक है। टू जज द एडिक्वेसी ऑफ द मेथड्स। ठीक है। तो जो भी आप मेथड्स यूज कर रहे हैं उसकी वो कितना एडिक्वेट होगा आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो ये तभी यूजफुल होगा जब आपको रिसर्च की नॉलेज हो प्रॉपर। सो दीज वर द टॉपिक्स दैट आई हैव डिस्कस्ड हियर इन दिस, है ना। So again I would like to conclude the topics which I have covered in the slides. That was key first that we have discussed here was कि what was the difference between methods and methodology। ठीक है। तो मेथड्स क्या होते हैं, जो भी टेक्निक्स हम यूज करते हैं रिसर्च प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए। मैथोलॉजी मतलब उस प्रॉब्लम को, रिसर्च प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो हमारा रिसर्च मैथोलॉजी हो गया। ठीक है। और रिसर्च सिग्निफिकेंस में हमने ये स्टडी किया कि क्यों रिसर्च ज़रूरी है। ठीक है। तो रिसर्च का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये अभी हमने स्टडी किया कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए होता है, गवर्नमेंट्स के लिए होता है, सोशल साइंटिस्ट को लिए होता है अगर उनको सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है। और पीएचडी होल्डर्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होता है ये। So these are the topics and for the PhD holders, ठीक है, and for the literates men and women। ठीक है। और जितने भी आपके एनालिस्ट हैं अगर उनको थ्योरीज डेवलप करनी है तो उसमें भी काफ़ी रिसर्च का यूजफुल होता है, सिग्निफिकेंस होता है। तो और बेसिकली जितने आपके सोशल साइंटिस्ट हैं उनके लिए भी काफ़ी ये यूजफुल होता है। और देन for the philosophers and thinkers, to literate men and women, to analyst, to the students। ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल होता है अगर उनको थीसिस प्रिपेयर करनी है, या प्रोफेशनल्स हैं जितने भी रिसर्च मैथोलॉजी में, और जितने भी फिलोसफर्स हैं न्यू आइडियाज जनरेट करने के लिए, टू लिटरेट मैन एंड वुमेन। ठीक है। उनके लाइफस्टाइल को या न्यू स्टाइल्स को डेवलप करने के लिए या वर्क में क्रिएटिविटी करने के लिए। तो ये सारे सिग्निफिकेंस हमने इसमें स्टडी किए। उसके बाद हमने ये स्टडी किया कि why it is important for the researcher to that he should have a good knowledge of the research methodology, why it is important। तो ये मैंने आपको बताया कि क्यों ज़रूरी होता है कि अगर आपको कोई न्यू स्कॉलर है या कोई स्टूडेंट है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। ठीक है। और रिसर्च रिजल्ट्स को ड्रॉ आउट करने के लिए कि वो रिसर्च रिजल्ट ज़्यादा इम्प्रूव फॉर्म में फाइंड आउट हों, तो उसके लिए हमें मैथोलॉजी का इम्पोर्टेंस ज़रूरी है। और उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। तो दीज वर द टॉपिक्स दैट हैव डिस्कस हियर एंड अदर टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन द other slides that I will share you। ठीक है, afterwards। So these were the topics। So thank you student for the today's class।